Okay, students. So today we are going to discuss Sir, our next. 18 session. Yes, what? Okay, students. So let's watch. Our next topic is screen is visible to all of you or not? Yes, sir. Okay. So students, today next chapter and name of the chapter is electrolysis. So who will tell me what is the mean of electrolysis? What is the mean? What is the mean of electrolysis? Hmm? Electrolysis. Sir, separation. Electrolysis. Okay. Student, electro mean electricity. Board is visible. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Check your network, student. Screen is visible to all of you. Why not to you? Okay. So electrolysis mean breakdown of a substance by electricity. Not breakdown of electricity. Okay, when you will pass current, then some breakdown will occur. Similarly, hydrolysis mean breakdown will occur when you will pass water through it. कोई substance, suppose you have sucrose, okay, and you are adding water in the presence of acid, so sucrose will get dissociated into glucose plus fructose. So this is hydrolysis. And in electrolysis, suppose you have sodium chloride and you passed electricity, so you will get sodium and chlorine gas. ये दो चीज आपको मिलेंगी. तो ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? When you passed electricity. Okay? So first of all, ये तो लिटरली मैंने आपको बता दिया उस चैप्टर का मीन क्या होता है. But if you will talk on conductance means, students, who will tell the mean of conductance? What is conductance, students? Flow of current. Flow of current is known as conductance. So there are two types of conductance. This is important. First is metallic conductance. First is metallic conductance, and students, second is electrolytic conductance. Electrolytic conductance. Okay, so as the name is indicating, conductance या conductance in metal या ओर, मेटल्स ही तो बनते हैं ना, और तो ये क्या कहलाएगी? आपकी मेटेलिक कंडक्टेंस. जो कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, मतलब किस में होगी, किसकी वजह से नहीं, किस में होगी? मेटल में. और इसमें क्या होगी? कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट. कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रोलाइट का मीन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट molten state of metal. Molten state of metal. इलेक्ट्रोलाइट होता है, पहले यही समझ लो. देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं.
इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो डिसोसिएट हो जाएंगे, जब आप उनको किस में डिसोल्व करोगे, वाटर में। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग NaCl and will give ion and will give ions. As you will add NaCl to water, what will happen? You will get Na positive and Cl negative. When you will add HCl to water, what will happen? H positive and Cl negative will be there. When you will add H2SO4, what will happen, student? 2H positive plus SO4 2 negative. When you will add sodium carbonate to water, so what will happen, student? You will get 2 ions of sodium and 1 ion of carbonate. So all these are what? All these are what, student? Electrolyte. ये सबके सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ओके, और आपको पता है फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, यू नीड टू थिंग, आइदर इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज आयंस। जब तक इन दो में से कोई एक चीज नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा। वुड में क्या है? नो आयन। तो क्या वुड में करंट फ्लो होता है? नहीं। नो। प्लास्टिक, नो। नो आयन। क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नो। नो। आयरन, व्हाट विल इट गिव? यस सर। इलेक्ट्रॉन। आयरन मेटल है। आयरन क्या है बच्चों? मेटल। और मेटल में क्या होते हैं? मेटल में होते हैं फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? NaCl करेगा। बताओ वाटर में डालने पर क्या देगा ये? Na प्लस एंड Cl माइनस। क्या है ये? Cl माइनस। आयंस। तो ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस लेकिन एक बात बताओ, मैं इसको वाटर में नहीं डालता, क्या ये आयन दे रहा है अब? नो सर। तो क्या ये कंडक्ट No, करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नो। नो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, NaCl does not conduct electricity in solid state. Who will give the answer? Raise your hand. Question is that NaCl does not conduct electricity in solid state. Why? Raise your hand. कितने बच्चों को पता है भाई NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में? ओनली 2 स्टूडेंट्स, 3। अरे वन बाय वन। आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, जस्ट आई एम आस्किंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द आंसर। रेज योर हैंड। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स बट ओनली 4 स्टूडेंट्स नो द आंसर। अदीबा रहमान। यस सर। हाँ, so why will NaCl conduct electricity in solid state? क्या NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा दीवा? अनम। यस सर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? Because of no formation of ions. Yes, absolutely correct student. What I told you, simply I told you, if what I told you in the previous here, electrolyte in water, electrolyte only in the presence of water, here look here, will give ion in the presence of air, in the presence of water only. If you will not provide water, then these ion
if you will not provide water, then these solid will not give ion. NaCl को आपने वाटर में डाला, then you are getting Na positive and Cl negative, mean ion. But if you will not provide water, then no ion, वो ion ही नहीं देगा, क्योंकि आयोनाइजेशन होता ही वाटर में है. लेकिन प्लास्टिक में आप वाटर डाल दो, वुड में आप वाटर डाल दो, तो ये आयन तब भी नहीं देंगे, ये आयन आपके तब भी नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास आयन होते ही नहीं है. यहाँ NaCl के पास आयन तो है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन तो है, लेकिन जब तक आप वाटर नहीं डालोगे ये आयन अलग नहीं होंगे एक दूसरे से. क्या नहीं होंगे? ये अलग नहीं होंगे. पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था, these are attracted by a strong attractive force and these forces do not allow these ion to move away. ये forces अलाउ नहीं करते कि ये सोडियम क्लोरीन से अलग जाए या क्लोरीन सोडियम से अलग जाए, इन फोर्स की वजह से. बट एज यू विल ऐड वाटर, देन दिस वाटर विल ब्रेक दिस इंटरेक्शन और इनको फ्री कर देगा. फ्री कर देगा मतलब इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिए? आयंस प्रोड्यूस कर दिए, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. तो दोबारा देख लो, एक आपके पास NaCl है एक्वस और एक आपके पास NaCl है सॉलिड. ऐसे लिखा हुआ होगा आपको. कैसे लिखा होगा स्टूडेंट्स? लुक हियर, दोबारा एक्वस होगा आपको लिखा हुआ या ऐसे लिखा हुआ आएगा. क्वेश्चन आएगा, which of the following will conduct, which of the following will conduct, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी. बताओ आप क्या आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट. Sir, first. ये समझ लो. First. फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि ये किस में है? एक्वस में है. एक्वस का मतलब Aqueous में वहां है पर ये. क्या है? वाटर है. वाटर है तो वहां पर क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे. सॉलिड वाला आयन नहीं देगा. या अच्छा, अगर मैं एक तीसरा ऑप्शन लिख लेता, NaCl मोल्टन, पिघला हुआ भी आयन देता है. तो याद रखना, मेटल इलेक्ट्रोलाइट इन इन एक्वस और इन मोल्टन स्टेट, ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं याद कर लेना, will conduct electricity. What I told you student, this is most important line, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसमें? एक्वस में या मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. एक्वस में भी वो आयन देता है और मोल्टन वाले में भी वो आयन देता है. बस एक ही स्टेट है जिसमें वो आयन नहीं देता, वो है आपका वाटर, सॉलिड. समझ में बात आ गई? अब रेज करो अपने हैंड, ये बात किसको समझ में आई? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट either in aqueous or in molten state will conduct the electricity, because in these two state that electrolyte will give ion. ये बात कितनों को समझ में आ गई है? जल्दी से अपने हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए. खुदा खान, एक तो ये जो अनम्यूट बैठे रहते हैं ना, मैं फिर रिमूव कर दूंगा क्लास से. खुदा आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? नहीं आ रही है तो आपको क्लास में भी रहने का कोई राइट नहीं है. लक्ष्य, सिमरा, Yes, sir. इज इट क्लियर? Sir, yes. दूसरा, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ठीक है. चलिए,
तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और बात मैं आपको बताता हूं। देखो, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं आपके शुरू से। अब मैं एक नई चीज यहीं पर लाकर इसको ऐड करूंगा, ये बात आप ध्यान देंगे। हालांकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। सब्सटेंसेस जो हैं, दो तरह के सब्सटेंस हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट, second is non-electrolyte. And what is electrolyte? mean जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे, produces ions on dissolving in water. कौन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? सबसे सिंपल डेफिनेशन आ गई, जो क्या करेंगे, आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। ये आयंस नहीं बनाएंगे, ये आयंस नहीं बनाएंगे, नो आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ये पॉइंट मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब ये आयन दे रही हैं तो क्या होगा, will conduct electricity in aqueous form। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या दिए, आयन दिए। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यू विल टेल मी, क्या इन्होंने कोई आयन दिया था? नो सर। तो क्या ये No, इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नो। नो। नो सर। तो फटाफट से मुझे आप इसके 5 एग्जाम्पल बता दो। सर वुड। यस, सर वुड, प्लास्टिक, रबर, पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ, पेपर, क्लॉथ, रबर, पेपर, रबर अल्कोहल, और प्योर वाटर। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये रबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बताई। किसने बताई ये? सर अनम। अनम। अनम कहां से देख के बताया? सर कहीं से नहीं पता था बस। अच्छा, चलो अच्छी बात है। देखो, प्योर वाटर जो है स्टूडेंट्स, हालांकि मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था जब YouTube पे क्लासेस ले रहे थे हम, प्योर वाटर जो है आपका वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? ये बात समझने की, क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट आपके एग्जाम में। यानी कि ये आयन नहीं देगा, मतलब अगर आप वाटर लोगे तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं देगा, ये नहीं देता। अब ये आयन नहीं दे रहा तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, प्योर वाटर में कभी करंट नहीं लगेगा आपको। प्योर वाटर में कोई भी आपको करंट नहीं लगेगा, प्योर वाटर में। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर वाटर में तो करंट लगता है हमें। वो एक्चुअल में वाटर में जो आपको करंट लग रहा है, दैट इज नॉट प्योर वाटर। अगर कहते हैं ना कि हाथ गीले थे करंट लग गया, क्योंकि जो आपके हाथ वेट थे उस दौरान उस वेट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था वहां पर? ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है जो आप घरों में पी रहे हो, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड भी होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट भी होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट भी होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट भी होते हैं। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 9th क्लास में, जिसको आप इन शॉर्ट क्या कहते थे? हार्ड वाटर। यस, हार्ड वाटर। यानी कि आपके घरों में जो पानी है, आपके नहीं मेरे भी,
वो कौन सा है एक्चुअल में? हार्ड वाटर। तो ये क्या कर रहे हैं उस पानी के अंदर, कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है उस वाटर के अंदर, आयंस दे रहा है। क्या दे रहा है? आयंस। तो करंट जो आपको लग रहा है वो इन आयन की वजह से लगा। अगर ये नहीं होते तो वो क्या कहलाता? मतलब वहां पर सिर्फ क्या रहता और क्या रहता, तो वहां पर क्या नहीं होता? कोई आयन नहीं होता। कोई आयन नहीं होता तो कोई भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलती, नो इलेक्ट्रिसिटी, और आपको करंट कभी नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? मतलब प्योर वाटर की कंडक्टेंस कितनी होती है? 0। अब मैं पीछे आता हूं। अब मुझे इसके नेम बताओ, इसके एग्जाम्पल बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। अभी आपने बताया NaCl, ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आयरन, ऑल मेटल्स। आयरन नहीं रखेंगे, ना 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 ना। ये समझो अभी मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको जब आज चैप्टर शुरू किया था तो आपको क्या बताया था कि कंडक्टेंस दो तरह की है। एक तो कौन सी है? इलेक्ट्रोलिटिक। मैं आपको अभी इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ा रहा हूं, मेटेलिक पे नहीं आया। तो कंडक्टेंस, हाँ, ये दीज आर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। कंडक्टेंस ऑफ मेटल आर द कंडक्टर, ठीक है ना, बोथ आर कंडक्टर। तो आप क्या लिखोगे? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और इन मोल्टन स्टेट। ये बात आपको बताई कि नहीं बताई? यस सर। गलत हो गया, मोल्टन में नहीं करते ना ये, और इन एक्वस फॉर्म ओनली। एग्जाम्पल NaCl एक्वस, HCl एक्वस, H2SO4 एक्वस। कौन बताएगा NaClS? जल्दी बताओ मुझे, NaClS कंडक्ट करेगा? नहीं। नो सर। नो सर। H2O, प्योर वाला H2O, नो। नो। ठीक है ना। इसमें ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, मेटल में ये सबसे बहुत बढ़िया एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। यस, सॉलिड और मोल्टन दोनों। हाँ, बस इसमें आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और इन मोल्टन, और इन मोल्टन। मतलब अब मुझे बताओ NaCl मोल्टन पिघला हुआ? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है ना। बस याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, बस सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते, बाकी मोल्टन में भी करेंगे और एक्वस में भी। और ये वाले सॉलिड में भी करते हैं, मोल्टन में भी करते हैं। एक्वस इनका बन नहीं सकता, मेटल घुलता नहीं है, ठीक है ना। प्योर मेटल रेयरली, मतलब एज इट इज नहीं रहेगा, और रिएक्शन कर लेगा वाटर के साथ अगर करेगा तो। अब मुझे बताओ, आयरन की रोड है आपके पास, आयरन रोड, आयरन की रोड से करंट लगता है कि नहीं लगता आपको? लगता है। हाँ, इसका मतलब चलो आपके घरों में जो वायर है, कॉपर की वायर है, बिजली के तार, ये एल्यूमिनियम की वायर है, सॉलिड है कि नहीं है? यस तो उन वायर से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके पंखे, बिजली, बल्ब, टीवी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? या पानी से जा रहा है आपका करंट? हो रहा है। यस सर। या किसी के घर में पानी से चल रहा हो? नहीं सर। खोल के वायर पानी में और वायर लगा रखा हो टीवी में? या किसी ने मोल्टन पिघला रखा हो, आग जला के मेल्ट कर रखा हो लगातार, और आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हो? नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब मेटेलिक कंडक्टर जो हैं वो मेटल है, मेटल जो आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, कोई भी दिख जाए आपको, टिन, लेड, ग्रेफाइट, हालांकि ग्रेफाइट नॉन मेटल है, ठीक है ना, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयरन, कॉपर,
सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइट में ये सब मैंने लिख दिए, लेकिन एक्वस हो या फिर क्या हो, मोल्टन हो, एक्वस हो या मोल्टन हो, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। यस सर। ये सब मैं आपको करवा चुका। तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो गए। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो हमने पढ़ने ही नहीं, हमने बस इलेक्ट्रोलाइट जो है अब आगे हम पढ़ेंगे। हालांकि एसिड बेस वाले चैप्टर में मोहित सर ने आपको करवाया भी था कि इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके 2 टाइप्स के हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरह के होते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, ये भी 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सेकंड इज वीक। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सेकंड इज वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझेंगे पहले। HCl है आपके पास, H2SO4 है, NaCl है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना। ये आपने इनको वाटर में डाला, आपने इसमें इन सबको किस में मिलाया, वाटर में मिलाया स्टूडेंट। सो व्हाट विल हैपन, सपोज आप 10 मॉलिक्यूल ले रहे हो, 10, तो आप ये क्या हो गया, मान लो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। कंप्लीट डिसोसिएट मतलब 10 के 10 मॉलिक्यूल टूट गए, आयंस में टूट गए। एसिड 10 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, 50 NaCl के लिए, 100 नाइट्रिक एसिड के लिए, इन सब में क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। दिस वन कंप्लीट डिसोसिएशन। बट सपोज यू आर टेकिंग ammonium chloride, here you are taking 10 molecules of ammonium chloride, but out of 10, 2 molecules are undergoing in dissociation, या चलो 9 भी मान लो आप, लेकिन पूरा तो नहीं जा रहे, वो सारे के सारे तो नहीं टूट रहे। यानी कि ये डिसोसिएशन कैसा है, पार्सली। कैसा डिसोसिएशन है ये, पार्सली। और ये वाला कैसा डिसोसिएशन है, कंप्लीट डिसोसिएशन। और ये कैसा डिसोसिएशन है स्टूडेंट्स, पार्सली डिसोसिएशन अगर होगा तो वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, और कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप एक बात बताओ, कौन आयंस ज्यादा देगा, कंप्लीट स्ट्रॉन्ग वाला या वीक वाला, कौन आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला। अब एक बात मुझे फिर से बताओ, जब आयंस स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो कंडक्टेंस कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है या आयंस की वजह से। यहां आयंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा, यहां पर करंट भी कैसा फ्लो होगा, हाई, और यहां पर करंट कैसा फ्लो होगा, लो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ में आए आपको या नहीं आए? हाँ, तो इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देखो स्ट्रॉन्ग वाले के। स्ट्रॉन्ग, आपने जितने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग वाले, इसीलिए कहते हैं इनको स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, सोल्ट NaCl, KCl, ठीक है ना, ये सब हो जाएंगे। वीक वाले में आ जाते हैं, वीक वाले में वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, आपका नींबू वाला सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड खाने से किसी का मुंह जलता है क्या, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड पी के दिखा देना मेरे को, टेस्ट में लगेगा तो ये भी खट्टा, पर पी के दिखाना। सिट्रिक एसिड भी खट्टा लगता है लेकिन पिया जा सकता है, नींबू खाया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। आप ऑक्सैलिक एसिड भी खा सकते हो। किस किस ने खाया बताओ जल्दी ऑक्सैलिक एसिड? मैंने खाया। हाँ, क्या नेम है जिसने खाया है? अनम ने खाया है। और अनम कहाँ खाया है?
सर हमने भी खाया है हैं? सर टमाटो में। सर टोमेटो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। किसमें? अरे ये टमाटर में होता है आपका टोमेटो, जोमेटो नहीं। चलिए, ऑक्सैलिक एसिड खा सकते हैं इजिली। ठीक है, बेस की बात करता हूं। बेस, अभी मैं बात कर रहा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। एक अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैंने अभी पीछे वीक में लिखा था, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे। ये मैंने यहां लिख दिया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग में आता है, यहां आता है ये। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्लियर? तो इनका करंट कैसा होगा? लेस। इनका करंट कैसा होगा? हाई, स्ट्रॉन्ग करंट। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कंडक्टेंस के बारे में आज अभी तक बताया है। अब किसी का कोई डाउट है तो डाउट बताएंगे मुझे, बोलो जल्दी। अब किसको क्या चीज समझ में नहीं आई? मैंने 4 टॉपिक पढ़ाए। देखो क्या पढ़ाए, इधर देखेंगे। मैं समरी बना रहा हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन कौन से जो सब्सटेंसेस थे, मैंने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले मैंने लिखे, अभी तक की समरी बता रहा हूं, किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो। एक लिखे मैंने कंडक्टर, ये स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना। एक तो क्या लिखे, कंडक्टर्स, और क्या दूसरे क्या लिखे? नॉन कंडक्टर। कंडक्टर ये क्या करेंगे? विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर जो थे आपके 2 तरह के थे। फर्स्ट मेटेलिक, और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट मेटेलिक, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट। मेटेलिक कंडक्ट क्या कर रहे थे? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन किस किस में? सॉलिड एंड मॉल्टन। सॉलिड मोल्टन एक्वस। सॉलिड, मॉल्टन, एक्वस इनका बनता नहीं। मेटल का एक्वस बन नहीं सकता। मेटल आप वैसे आप बस इनको ये कह सकते हो कि मोल्टन में होंगे। इसमें क्या था, ये आपके किस में कर रहे थे? एक्वस में। एक्वस। दूसरा मोल्टन में। Molten. Molten. हाँ, इन एक्वस एंड मोल्टन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और नॉट इन किस में नहीं करेंगे ये? सॉलिड Sol. सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट आपके 2 तरह के थे। कौन कौन से? Strong, weak. स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग क्या थे? जिनमें क्या हो रहा था? कंप्लीट कंप्लीट डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। तो कंडक्टेंस क्या थी इनकी? हाई कंडक्टेंस। इसमें क्या था? पार्सली डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। और कंडक्टेंस कैसी थी इनकी?
लो कंडक्टेंस थी। आप फटाफट से इसके एग्जाम्पल बता देंगे। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल थे? HCl, H2SO4, HNO3, NaCl, NaOH, NH4Cl। इसमें क्या था? एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, citrus acid, सिट्रिक एसिड और एक था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, नॉन कंडक्टर के भी एग्जाम्पल बता दो, इसमें कौन कौन से थे नॉन कंडक्टर के? प्योर वुड, वाटर, ये लिखना जरूरी है, बाकी आपके वुड प्लास्टिक हो ही जाएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने पढ़ाया आपको, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट। डन? yes sir, आप जल्दी से बताओ कितनों को ये चीज समझ में आई? रेज योर हैंड।